हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन, उसके फीचर्स, उसके ड्रॉबैक्स, उसकी अचीवमेंट्स और उनके 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट जिसमें फ़िलहाल 99 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट जिसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 52 सब्जेक्ट्स है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर बना सकती है लॉज, स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो यूनियन की यानी कि सेंटर की मानी जाएगी। Both the state and center have power to make laws in the items of the concurrent list, but the center has more role in the concurrent list. The concurrent list includes social and economic planning, which means that it is a concern of both the governments. उसमें किस चीज़ की प्लानिंग के बारे में बात की जाती है? सोशल और इकोनॉमिक। But subjects like public health, education, road, agriculture, land, forest are found in the state list. तो ये सारे जो subjects आते हैं वो state list में आते हैं। These subjects are in the state list means that the primary responsibility for this proper administration lies with the state. तो इन सभी subjects की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? स्टेट की होती है और उनके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रॉपर वर्किंग की सारी जिम्मेदारी स्टेट के हाथ में होती है। The 5-year plans of the government of India seems to ignore this division of powers and starts with the assumption that apart from any legal consideration, the center is as much concerned with the administration of subjects in the state list as the state lists themselves in order to assure planned progress in all directions. The first 5-year plan stated, it is obvious that without complete coordination of policies and timely concerned action, there is a danger of waste and misdirection of effort, which may have consequences extended far beyond the area of responsibility of any single authority, and thus must be recognized by placing special responsibility on the center. About 70% of the total expenses of planning in the first plan and 65% in the second plan pertain to matter which are in the state list. Significance of consultation between states and center. Tarlok Singh points out that national planning widened the distinction between central and state responsibilities while proceeding to a larger extent through consultation. इन्होंने तरलोक सिंह जो थे इन्होंने बोला कि नेशनल प्लानिंग, ये जो प्लानिंग आ गई थी, प्लानिंग सिस्टम आ गया था, इसके बाद से जो स्टेट और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनमें और ज़्यादा डिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, गैप आ गया था। The reason given by him for this are planning determines the direction in which the central एज वेल एज द स्टेट रिसोर्स आर टू बी यूज। तो उन्होंने ये कहा था प्लानिंग के एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। इन जॉइनिंग विद द स्टेट्स टू प्रिपेयर अ नेशनल प्लान, द सेंटर एक्सेप्ट सम ऑब्लिगेशन फॉर इट्स implementation. The center inspires the states with new ideas and impulses national development program. तो ये साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे थे और एफर्ट्स डाल रहे थे ताकि जो उनके 5-year प्लान्स है, उनकी जो नेशनल प्लानिंग है वो और एनहांस हो और सक्सेसफुल हो। इन इंडिया प्लानिंग हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड एट द एग्जीक्यूटिव लेवल पे की गई थी एंड हैज़ नो लीगल basis. K. Santhaman rightly points out planning for purpose of economic development practically superseded the federal constitution so far as the states were concerned, but this supersession was not legal or constitutional but was by agreement and consent. तो उन्होंने ये बोला गया था कि ये जो भी बोला गया, अभी हमने ऊपर भी देखा जैसे नो लीगल बेसिस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट 5-year प्लान्स होने ही चाहिए, प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए। ये अग्रीमेंट और कंसेंट के थ्रू हुआ है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं 5-year प्लान्स, ईयर वाइज देख लेते हैं और उनका फोकस और उनका ड्यूरेशन दोनों देख लेते हैं। तो फर्स्ट 5-year प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 1951 टू 1956 तक, और यहाँ पे एग्रीकल्चर पे, पावर पे और ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया था। नाउ सेकंड 5-year प्लान, इसका ड्यूरेशन था 1956 से 1961 में। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री।
थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक, बैलेंस इंडस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे दोनों पे काम किया गया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1968 टू 1974, इम्प्रूव कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शंस थ्रू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वीकर सेक्शन पर यहाँ पे काम किया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1979, ग्रोथ फॉर सोशल जस्टिस, यहाँ पे सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई थी और उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात की गई थी। सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 टू 1985, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, हमारा मेन इशू पॉवर्टी। सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 टू 1990, ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे फिर से एग्रीकल्चर को लेकर आया गया। एट 5 ईयर प्लान 1992 टू 1997, इम्प्रूव ट्रेड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रेड पर और ह्यूमन के डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002, टारगेट एनुअल एवरेज ग्रोथ ऑफ 6.5% ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पर इकोनॉमी की ग्रोथ की बात की गई थी कि 6.5% तक इम्प्रूव करना है। टेंथ 5 ईयर प्लान 2002 टू 2007, टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 9%, पहले कितना था 6.5%, फिर हो गया 9%। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक, फोकस इज़ ऑन इनकम जनरेशन, कि इनकम को कैसे जनरेट किया जाए। 12th 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017, फोकस इज़ ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि विदाउट रिसोर्सेज को हार्म करे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन मार्च 1950, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्लानिंग कमीशन का जिक्र नहीं किया गया है। और ये कब सेटअप हुई थी, मार्च 1950 में, बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, but it was abolished by the new government which came to power in 2014 and it is replaced by नीति आयोग। तो अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या है, नीति आयोग, और ये अबॉलिश किया गया था 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय प्लानिंग कमीशन आर एज फॉलोज: to make an assessment of the material capital and human resources of the country, including technical personal formulation of proposals for argumenting and such of these resources which are found to be deficient। तो प्लानिंग कमीशन का ये काम था, ये पहले एक रिकॉर्ड बनाते थे कि कंट्री में कितना मटेरियल कैपिटल है, कितना ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि डेफिशिएंट में जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। To formulate a plan for the most effective and balanced utilization of the country's resources would initiate a process of development by raising the living standards and opening more opportunities for a rich and more varied life। तो यहाँ पे ये इनका सेकंड फंक्शन ये था कि अब जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करना, प्रॉपर यूटिलाइज़ करना कंट्री के रिसोर्सेज को, जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। Next is to define due stages in which the plan should be carried out and to propose the allocation of resources for the competition of each stage on a determination of priorities। तो resources को allocate करना जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। To indicate the factors which are tending to restart economic development and determine the condition which in view of the current social and political situation should be established for the successful execution of the plan। तो ये सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या जो कंट्री है उसमें सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, ताकि जो प्लान तो बना लिया अब उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली कैसे करना है। To appraise from time to time the progress achieved in the execution of each stage of the plan and to recommend the adjustments of policy measures that such appraisal might show to be necessary। टाइम टू टाइम चेक करना कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या हम प्रोग्रेस जो अचीव कर ली गई है ईच स्टेज पर, ये भी काम किसका होता है, प्लानिंग कमीशन का होता है। The main function of the planning commission is to prepare a national plan, which means the 5-year plan broken into annual plans। तो मेन इनका काम क्या होता है कि अभी जो हमने पढ़े 5 ईयर प्लान, सेकेंड ईयर प्लान, सेकेंड थर्ड 5 ईयर प्लान, तो जितने भी हमने 12 पढ़े उनको बनाना, नेशनल प्लान को बनाना। और ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपोजिशन की। प्लानिंग कमीशन में था क्या, कौन कौन थे, कौन कौन मेंबर्स थे इसके, कौन इस पर काम किया करते थे।
The organization and composition of the Planning Commission has undergone several changes since its inception in 1950. Since the Planning Commission is not a statutory body, its composition can be changed by the major reshuffle. ये स्टैचुरी बॉडी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो सकती थी. It consisted of 4 members in addition to the chairman and deputy chairman in 1951, where deputy chairman was appointed as the Minister of Irrigation and Power. तो डिप्टी चेयरमैन को ये अपॉइंट किया गया था एज द मिनिस्टर ऑफ इरीगेशन एंड पावर. आफ्टर 1953 द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग was appointed as deputy chairman. Evaluation. The Planning Commission was constituted in 1950 and worked till 2014. In 64 years time period, Commission took country towards self-reliance and all-round development. It acted as a link between the union and the state. इसने लिंक की तरह काम किया between the center and the state, और 64 years इसने वर्क किया जिसमें कि इसने हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाया है, डेवलपमेंट की तरफ लेकर गए हैं. It had achieved a lot of things for the country, बट देयर वर सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन इट. इसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी लिए, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी. अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग कमीशन आर डिस्कस्ड बिलो. तो अब हम अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया फॉर्मली कंसेप्ट इन 1951 हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग द इकोनॉमी टू टैकल द चैलेंजेस इन वेरियस सेक्टर्स and has enabled it to achieve rapid economic progress. तो इकोनॉमिक प्लानिंग ने क्या किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेकर आए, डेवलपमेंट किया, काफ़ी सारे जो चैलेंजेस थे उनको टैकल किया, सॉल्व किया. अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी अचीवमेंट्स प्लानिंग कमीशन ने अचीव की. It laid emphasis on infrastructure developments and capacity building. As a result, huge investments were made in education, energy, industry, railways and irrigation. इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, उसकी डेवलपमेंट पर काम किया, जिसमें कि एजुकेशन, एनर्जी, इंडस्ट्री, रेलवेज और इरीगेशन को इंक्लूड किया जाता है. India became self-sufficient in agriculture and made great progress in capital sector and consumer sector goods. प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिमार्केबल कॉन्सेप्ट्स लाइक डिफरेंट इन्होंने कॉन्सेप्ट्स लेकर आए, जैसे कि नेशनलाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ टू अलाइन विद द न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. इसमें एलपीजी की बात की गई है. एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. Planning Commission made great emphasis on social justice, governance, employment generation, poverty alleviation, health and skill development. प्लानिंग कमीशन ने किस किस चीज़ों पर और काम किए कि सोशल जस्टिस हो, अच्छे से गवर्नेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े लोगों का, स्किल डेवलप हो. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया from a poor to an emerging economic power is credited in the orderly and phased manner in which planning was implemented. पहले इंडिया क्या थी, पुअर थी, मतलब कि अंडर डेवलप्ड कंट्री थी. अब क्या है, डेवलपिंग कंट्री है. तो इसका कुछ क्रेडिट हम प्लानिंग कमीशन को भी देंगे. अचीवमेंट्स के साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे हैं. Though Planning Commission achieved great success in the country's development process, but still there were many drawbacks in the commission which are mentioned. No structural mechanism for regular engagement with स्टेट्स के साथ प्रॉपर मतलब उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, रेगुलर कुछ मीटिंग्स वगैरह कुछ नहीं थी. इनएफेक्टिव फोरम फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट एंड इंटर मिनिस्ट्रियल इशूज़, inadequate capacity, expertise and domain knowledge, weak networks with think tanks and lack of access to expertise outside government, failed to implement land reforms को भी implement करने में ये fail हो गए थे. It was a toothless body and was not able to make यूनियन टेरिटरीज आंसरेबल फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट्स. अब ये टूथलेस बॉडी थी, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्लानिंग कमीशन का मेंशन नहीं किया गया है. और अगर ये लोग सक्सेस नहीं कर पाते अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ना ही स्टेट, ना ही यूनियन टेरिटरी कोई भी आंसरेबल है कि क्यों नहीं कर पाए. डिज़ाइन प्लान्स विद वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच. इन्होंने वन साइज यानी कि सभी स्टेट्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक ही प्लान सेट किया हुआ था. Hence many plans fail to show targetable
रिजल्ट्स, वीक इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी और ना ही प्रॉपर इवैल्यूएशन किया गया था। रीजंस बिहाइंड डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब इसके ड्रॉबैक्स के बाद हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन वॉज अ सक्सेसफुल बॉडी बट स्टिल इट वॉज डिसॉल्व एंड द रीजन बिहाइंड इट्स डिसोल्यूशन आर एज the contemporary world is governed by constitution, ethos like federalism rather than centralization. Cooperative federalism and fiscal federalism will help to meet the diverse needs of different states, union territories in which planning commission had failed drastically. क्योंकि उन्होंने वन प्लान फिट फॉर ऑल जो उन्होंने बोला था, तो ऐसा नहीं होता ना, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको उनकी तरीके से डील किया जाता है, जिसमें कि प्लानिंग कमीशन फेल हो गई थी। हमने उसकी ड्रॉबैक्स में ये पढ़ा था। Plans have to be formulated by fulfilling the aspirations of states by tailoring the plans to suit their needs and requirements. Change in the economic scenario where the government is supposed to be an enabler rather than a player or provider of first and last plan. In 2014, National Democratic Alliance formed the government at union level. 2014 में National Democratic Alliance जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, इट टुक बोल्ड डिसीजंस टू अबॉलिश द प्लानिंग कमीशन, और यहाँ पे उन्होंने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया एंड रिप्लेस इट विद द नीति आयोग, और प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया, नीति आयोग। विद दिस चेंज 5-year प्लान्स वर ऑल्सो डिसबैंडेड एंड 3-year एक्शन एजेंडा वॉज फॉर्मुलेटेड। अब वो जो 5-year प्लान्स हुआ करते थे वो भी डिसबैंड हो गए, यानी कि बंद हो गए, और उनकी जगह अब क्या आने लगा, 3-year एक्शन एजेंडा। The Union government established Niti Aayog, National Institute for Transforming India, on 1st January 2015 को नीति आयोग आया था एज रिप्लेसमेंट बाय द प्लानिंग कमीशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, और ऐसे वीडियोज़ के लिए, अच्छे अच्छे नोट्स के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।